ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੀਏ ਬੁਲੰਦ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਭਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚੇ ਹੀ ਪਤੀ ਆਏ ਸੱਚ ਵਿਗਸਿਆ। ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਭਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚੇ ਹੀ ਪਤੀ ਆਏ ਸੱਚ ਵਿਗਸਿਆ। ਸੱਚੇ ਕੋਟ ਗਿਰਾਏ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਨਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਸਿਆ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕੂੜ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਵਖਾਣ ਸੁਮਹਿਲ ਖੁਆਈਐ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਬੁੱਝ ਵਖਾਨ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਐ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਬੁੱਝ ਵਖਾਨ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਮਾਝ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥਾਨਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਕੁਦ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਿਆਨ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੌਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੌਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੌਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ, ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਖਾਈ ਜਾਣ ਹਟਣੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਨ ਪਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਂ ਕਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਪੌਣਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ, ਬਸ ਕਰ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਫੜ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੇਟ ਐਸਾ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੰਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ। ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਗਨ ਪਾਉਣਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਚਵਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਆ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅੱਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਧੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ आओ आरंभ करिए। उस तो पहला गुरु का बख्शिया फतेह का नारा फिर करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पौड़ी सच्चा भोजन पाओ सतगुर दसिया। साडे सतगुर ने सच का प्रेम का भोजन खाना दसिया। एक तो अर्थ ये बोल गया कि सच बोल के कमाई करनी। बिन काया जे होर थे धन खोज दे। हुण काया दे विचों धन किहड़ा खोजना भला? एक तो नाम दा धन अंदर है, दूजा अपने शरीर नाल मेहनत करके पैसा प्राप्त करके रोटी कमाउणी, वह है काया राही खोजिया होया। को सतनाम सी। एक तो साडे गुरु ने सच दा भोजन खाना दसिया, दसां नौहां दी किरत करनी, ते दूसरा प्रेम दा, सब दे नाल प्रेम करना। तो इस करके सच दा भोजन सच्चा भोजन है जिहड़ा दसां नौहां दी किरत करके छकना, सच नाल जुड़ना। सच्चा भोजन भाओ सतगुर दसिया। सतगुर के मुताबिक जिहड़ा सिख सच ते चलदा है, दसां नौहां की किरत करदा है, भावें कि संसारी तौर पर कमाई भी करदा है, पर दस के भी हाँ इन्ने दा पैंदा, इन्ने दे लेने लेने आ। ते इस तरह गुरु प्यारो सच की किरत जिहड़ी करनी है, किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना। प्रेम का मतलब है वंड छकना। साडे गुरु ने सानू सच का भोजन करना ते प्रेम दे नाल वंड छकना दसिया है। साच कहो सुन लिहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपाया पायो। जिन्हां ने प्रेम किया उन्हां ने ही परमेश्वर नूं प्राप्त किया। दूसरा इहदा अर्थ है सच्चे दा नाम जपना, जो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच है। केवल ते केवल उसे नूं ही जपना। पहले जामे तो 10वें जामे तक सतगुरां दे उपदेश इक्को ही है, शब्द भावें बदल बदल के लिखे आ। 10वें पातशाह जी ने कह दिता साच कहो सुन लिहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जे रब नूं पाउणा ते प्रेम की लोड़ है, इत्थे सच की लोड़ है। जिंदगी भी सच नूं उतारन की लोड़ है, झूठ नूं छड्डण की लोड़ है, तां उस मालक नूं पाया जा सकता है। सच का भोजन ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। जदों ये सच नाल जुड़ांगे, गुरबाणी नाल जुड़ांगे, सच का जाप करांगे, सिमरन करांगे, तो इहदे विचों ज्ञान भी पैदा होवेगा। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन तो केवल ज्ञान ही बन जाता है, फिर सच ते चलदा है तो सच मुताबक ही जीवन बतीत करता है, सच्ची सुच्ची किरत करता है। जिस तरह धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस वेले भाई लालो दे घर जाते हैं तो लगभग पहली बार 25 दिन तो दूजी बार 5 दिन, 1 महीना गुरु नानक देव जी भाई लालो दे घर रहे आ। और भाई लालो दे घर रोज़ प्रशादा छकते आ। तो उथों का एक वजीर है, अमीर है, मलक भागो पठान राजे का वजीर है। ये साल छमाही देसी घ्यो का लंगर ला दिंदा है। तो उन्होंने दिनों च लाया सी ते बाबा जी नूं भी सद्दा देता तो पातशाह गए नहीं। दूजी बार बंदे भेजे पातशाह, फिर कहते भी साडा ब्रह्म भोजां दे नाल कोई तलक नहीं, संता जिहो जी मिल जाती है छक लैने आ, असी कोई जीव के स्वादां विच नहीं। वो कहते जी वजीर साहब है, कहते कौन है वजीर? मैं तो पलक भागो नूं जानदा नहीं। जाके फिर भड़काता, 5-7 बंदे भेजते, कहते नहीं आउंदा तो फड़ के ले आओ। कहो सतनाम श्री। कहते जे नहीं जाओगे असी फड़ के लै जाएंगे। बाबा जी कहते फड़ के ले जाण नूं की, अं चल वड़दे आ। लिया की पाया, जाके बह गए। थाल परोस के रखता,
मगर ही लालो भी भागे आ भी की गल हो गई इन्नी तद्दी नाल सद्दिया पातशाह नूं। पिछे भाई लालो खड़े आ, लालो घरे प्रशादा पिया, कोई कहंदे जी पिया जा लैके आ, ते पौने च लपेट के एक प्रशादा लै गया। जदों लालो जी पहुँच गए तो फिर धन गुरु नानक देव जी कहने मलक भागो ये रोटी असी नहीं खानी। क्यों की होया? देसी घ्यो का लंगर बनया। कहते देसी घ्यो नहीं, मैनूं तां लाल रंग का खून दिखाई दिंदा इहदे चों। कोई सतनाम सी। सारे सुनने वाले हैरान हो गए जिहड़े खा रहे सी लंगर छक रहे सी। खून खून कित्थों आ गया? बाबा जी कहते दाल च भी खून है, रोटियां विच भी खून है, खून ही खून। जो 3-4 वारी कहा तो मलक भागो कहना विखा खां कित्थे है? कहते लै फिर देख ला, नहीं रहिंदा तां खब्बे हत्थ च ओहदियां पूरियां फड़ियां ते सज्जे हत्थ च रोटी फड़ी। लालो दी नप्पियां जदों ते प्रतੱਖ दे विच ही दिखा दिता। इधरों दुध दे चौंके डिगे ते इधरों खून डिग्या ते फिर सारे हैरान हो गए भी ये कित्थों आ गया। बाबा जी स्कैन करते हैं, बाबा जी तो एक्सरा कर लेंदे आ हरेक दे अंदर दा। को सतनाम श्री। कहने कित्थों आ गया ये खून? पता जिथों माया आई आ, जो गरीबां दे उत्ते टैक्स ला ला के अनेकां तरह दियां लोकां दे कोलों कर लै लै के धोखे दे नाल जनता नूं लुट लुट के जिहड़ा पैसा इकट्ठा करदा है उस नूं साल छमाही एक लंगर ला के तू चिट्टा करना फिरदा। ये काला पैसा तेरा सारा, उसे पैसे दा खून है। मैनूं तां इन्हां पूरियां च लोकां दीयां चीकां भी सुणदियां। कहो सतनाम सी। गरीबां हुण गरीब चीकां मारदे जदों महंगाई हुंदी आ। तो इस करके गुरु प्यारिओ पातशाह जी कहते मैनूं तां इह चों चीकां भी सुणदियां। ते आ है ब्रह्म भोज भाई लालो दे घरे जिहड़ा रोज़ हुंदा है, इसे करके उत्थे रोज़ छकदे आ असीं। मैं नहीं खांदा, उठ के पातशाह तुरिया है। खैर साखी तुसीं जाणदे हो। फिर मलक भागों ने बदला लैण दी ठानी, पर बदला भी लै नहीं सकिया। किहड़ा झल्ले गुरु दी झाला। तो सच्चा भोजन की है? सच बोलना। ये साडी आत्मा दा भोजन है। जे सच बोलांगे तो झूठ बोलांगे तो आत्मा तड़फदी रहूगी, किते मेरा झूठ प्रगट ना हो जाए, मेरी बेइज्जती हो जाऊगी। कहो सतनाम श्री। तो सच दे बहुत अर्थ निकलणगे। आद सच, जुगाड़ सच, परमेश्वर भी सच है। वो सच नूं पाउण लई थल्लिओ सच बोलना शुरू करना पैना सानूं। कहो सतनाम श्री। सचों उरै सब को, सारी दुनिया सच तो थल्ले है, परमेश्वर तो थल्ले है। कोई उत्ते गया कहने हाँ उपर सच आचार, उपर वो गए जिन्हां ने सच नूं आचार चाल चलन जीवन दे विच धार लिया। कहो सतनाम श्री। आचार हुंदा चाल चलन साडा। जिन्हां दे चाल चलन दे विच सच आ गया, वो सच तो भी टप गए, भाव वो परमेश्वर दे विच मिल गए। मेरे प्रीतम जी अगे कहंदे हन सच्चे ही पति आए सच विगसिया। जिहड़े सच नाल जुड़दे हन, मेरे सतगुर ने दसिया मैनू, गुरु अंगद देव जी सिद्धां नाल वार्ता करदे आ। मेरे गुरु ने मैनू ये दसिया कि जिहड़े सच नाल जुड़दे है उन्हां दा मन पतीज जांदा है। पतीजना हुंदा मन जाना। भगत रविदास जी कहंदे बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूर्ण दीजै। मैनू पूरा कर, मेरे अंदर जिहड़ा अधूरापन है, जिहड़ी अज्ञानता है, उहनूं कढ विचों मैनू पूरा कर ते अपने चरनी ला, ताकि मेरा मन तेरे बचनां नूं मनन लग जावे। कहो सतनाम तेरे बचनां ते खड़ जावे। बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूर्ण दीजै। हों बल बल जाओ रमैया कारने। किहड़े कारण तो? एक कारण है कोई सो क्यों विसरै जिन सब किछ दिया। ये सारे ही कारण है, वो तो बलिहारे जान दे। कहो सतनाम। किन्ना कुछ दिता बई उन्हें आपां नूं। अपनी मर्जी नाल आपां बंदे नहीं बने, ये भी उसने आपां नूं मनुखा जूनी दिती आ। कहो सतनाम। फिर गुरु नानक दे घरां दे विच पैदा कीता। फिर तुहानूं सारियां दातां दित्तियां, सिੱਖੀ ਸਰੂਪ दिता। ये उहदियां दित्तियां दातां। कारण कवन कह नहीं सकदा। कारण कवन अबोल मैं की कहां। किहड़े किहड़े कारणां तो बलिहारे जाना, बस बलिहारे जाना।
बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारा लेखे, कह रविदास आस लग जीवों चिर भयो दर्शन देखे। मेरे प्रीतम जी कहते मेरे मालक ने मैनू सच नाल जुड़ना दसिया ते मेरा मन सच ते खड़ गया है। सच्चै ही पति आए, जिदे ना मैं सच बोलन लग्या, सच ते चलन लग्या, सच नाल जुड़िया हाँ, मेरा मन मन गया है। सच विगसिया, ये सच मेरे अंदरों खेड़ा पैदा करन लग पिया। कहो सतनाम श्री। मेरा मन खिड़ गया है उदे दा। तुसीं झूठ बोल के देख लो, कोई सारा दिन डरी जाओगे जिन्ना चिर झूठ का पर्दा फाश नहीं हुंदा। कहो सतनाम। तो ये सच बोल दिए तो लोड़ ही नहीं दोबारे दसन पुछण दी। ठीक है, सच है तो सच है, कहता हुण जो मर्जी करे कोई। कहो सतनाम श्री। सच नूं कटिया नहीं जा सकता, झूठ का खतरा ही खतरा है। मेरे प्रीतम जी कहने सच्चे ही पति आए, सच विगसिया, मेरा मन सच ते पतीज गया, खड़ गया है। हुण अंदर विगासना खेड़ा शुरू हो गया है। आ दरख्त पतझड़ दे विच रुंड मुंड हो जाते हैं, सब पत्ते झड़ जाते हैं, तो फिर सौण महीने विच फिर खिड़ते हैं, नवे पत्ते निकलते हैं, बसंत रुत विच फिर खिड़ते आ। जिहड़ा मैं कुंठिया जा पिया सीगा, मैं डरी जांदा सीगा, अंदर खेड़ा पैदा करता है सच ने। हुण खतरा ही कोई नहीं, डर ही कोई नहीं रह गया। कहो सतनाम सी। सच्चा ही पति आए, सच विगसिया। ते महाराज कित्थे रहने हो? कहंदे सच दे कोट विच, कोट हुंदा किला, घर। असीं सच दे विच ही रहने आ, सच तो बाहर नहीं जांदे। कहो सतनाम सी। सच दे घर विच रहने आ, साडी सुरत हमेशा सच विच रहिंदी आ। सच्चा कोट गिराए, निज घर वसिया। अकाल पुरख ने जिहड़ा ये बाडी बनाई आ, ये उहदा कोट है, ये सच्चे दा बनाया कोट है, किला, घर। कपड़े नूं भी कोट कह दिंदे आ, वो इहदे उत्तों दी पा लैंदे आ, वो भी कोट आ। तां कोट दा मतलब घर, किला, जिवें आ किला बनाया। तो कबीर साहब जी कहते मैथों मेरा किला खो लिया। किहड़ा किला खोलिया? पंजे विकारां ने कब्जा कर लिया। मेरी बाडी नूं ये पंजे विकार वरतन लग पे। मैनू तो इहदे विच खड़ नहीं दिंदे। चल तू वो लिया, चल तू वो लिया, मैनूं तां ही तोरी फिरदे आ। कहो सतनाम श्री। मेरा किला खोलिया, हुण मैं यह किला वापस किवें लवां? ते सतगुरु पातशाह कहंदे प्रेम दे तीर मार के, ज्ञान दे तीर मार के, प्रेम दा पलीता ला के, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। तो मेरे प्रीतम जी अगे बख्शिश करते हैं, सच्चा कोट गिराए, मैं सच दे पिंड विच वसदा हाँ, मैनू सच दा पिंड प्राप्त हो गया, मैं सच दे विच रहिंदा हाँ। निज कर वसिया, इत्थे सच विच रहोगे। इस किले नूं छड्ड के, इस शरीर नूं छड्ड के फिर उस घरे जाओगे जिथों निकलिया नूं अरबां खरबां साल हो गए, 84 लाख जूना हो गईयां। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाले देश नरिया। जी इत्थे सच बोलांगे फिर सच में समा जावांगे। कहो सतनाम श्री। एक बच्ची भी अगर अपने पति दे नाल ईमानदारी नाल बतीत करती है, जीवन उस पर डिपेंड है, तो उन्होंने घरों नहीं कढ़ सकता, क्योंकि वह सच ते चल रही है। कोई सतनाम सी। इस तरह साडी जीव आत्मा जब सच ते चलेगी तो फिर दरगाह भी जांदियां नूं कोई रोक नहीं सकता। रे रे दरगह कहे न को, आओ बैठ आदर सुभ देव, जे दर आवत जाते हो हट कै नाही कोए, सो दर कैसे छोड़ी है जो दर ऐसा होए। फिर उस दर नूं प्राप्त करने वास्ते क्यों ना दुनिया विच रहिंदे सच ते चलिया जावे, क्योंकि आ मनुखा जन्म फिर नहीं मिलना। एक बारी जदों हथों निकल गया तो पातशाह जी कहंदे उस घर नूं पाउण वास्ते इस घर विच रहिंदे आ भी सच नाल जुड़ीए। सावन सरसी कामनी, चरण कमल सो प्यार, मन तन रत्ता सच रंग, इको नाम आधार।
जिन्हां दा एक नाम दा आसरा है, सच दा आसरा है, सच ते चलदे आ, सच बोलदे आ, किसे दे गोडे लगे गिट्टे लगे, अपना सच नहीं छड्डदे, जेड़े जो सच ते चलदे आ। सच ते चलन करके ही बहुत सारिया सिंघां दीआं शहीदियां भी हो गईयां, पर सच नहीं छड्डिया। भाई जय सिंह गुरु का सिंह होया ते मुगलों ने उसकी ड्यूटी लाई, नौकरी करता सी, मजदूरी करता सी, दिहाड़ी करता सीगा। मुगलों के राज की गल है। कहन लगे भी साडा समान छड्ड के आ बई सूबेदार कोले आ गया, दिहाड़ी लैनी सी, छड्ड आउणे आ जी, आ पंड छड्ड के आ सूबेदार दे घरे। की है इहदे विच तमाखू वजिया, कहंदे इहनूं परे कर लो, मैं तमाखू सिर ते नहीं रखना। कहो सतनाम सी। भावें इदू दुगना वेट चका दिओ, पर तमाखू वाली पंड मैं नहीं चकनी। जद भाई जय सिंह खलकट उहदा गुरु प्यारो तखलस है, जय सिंह खलकट, जदों उसने जवाब दे दिता ना वो पंड चक्कण तो, ते हुण मुगलों का राज सीगा, उन्होंने धक्का किया भी चकनी पैनी है। कहना मैं चकदा नहीं गा, मर भावें जावां, मैं गुरु के बचन तो पासे नहीं जा सकता, मैं तमाखू की पंड सिर ते नहीं रखनी। कहो सतनाम श्री। तो वह भाई खलकट नूं रविदासिया सिंह सी, चमड़े का काम करदा सी, जोड़े गणदा सी, जोड़ियां का काम भी करदा सी। कहंदे उस भाई खलकट जय सिंह नूं दरख्त दे नाल उल्टा लमका करके फिर उसे दी रंबी नाल ओदा चमड़ा उधेड़िया उन्होंने। कहो सतनाम सी। शहीद करता उन्होंने मुगलों ने, इस तरह करके सिंह शहीद हो गया, पर गुरु के बचन तो पासे नहीं गया। कहो सतनाम सी। परमेश्वर के घर नूं प्राप्त कर लिया। कैसे होए, कितने होए, इतने गिनती तो बाहर है जिन्हों ने सच नहीं छड्डिया, गुरु का पल्ला नहीं छड्डिया, जिंदगी छड्डती, शरीर त्याग दिते। कहो सतनाम सी। तां सच्चा कोट गिराए, जिहड़े सच दे किले विच रहिंदे हन, जिहड़े सच दे घर विच रहिंदे हन, सच दे ग्रां पिंड विच रहिंदे हन, निज घर वसिया, जदों संसार छड्ड के जांदे आ अपने मालक दे घरे जाके वसदे हन। सतगुर तुठै नाओ प्रेम रहस्या, जिन्हों सतगुर ने त्रुठै खुश होके अपना नाम दे दिता। ये नाम की दात भावें कि असी प्रचार करना है, असी कहना ही अमृत छको, गुरु वाले बनो, गुरु वाले बनो, अमृत छको, साडी ड्यूटी आ। जे कोई कहे भी रोज़ ही बाबे कही जाते अमृत छको, अमृत छको, भी असी तो कहना, पर सोडे चो मिलू उन्होंने जिन्हों ने भाग होणगे। कहो सतनाम। उसे दे चोट लगू, उही उठ के गुरु कोले पहुँचेगा, पंज प्यारिਆਂ कोले पहुँचेगा। चोट लगी सतगुरु अमरदास जी दे, गंगा दे यात्री सीगे। अद्धी रात नूं उन्हां दा मित्र ब्रह्मचारी चोट कर गया। अमरदास तेरा गुरु कौन है? कहना आपां नूं गुरु की की लोड़ है, आपां तां गंगा दे यात्री हाँ, अपने तां गंगा च फुल पै गए, मुक्ति हो जानी आ। लोकां दा यही ख्याल आ। कहो सतनाम श्री। वो ब्रह्मचारी भी गंगा का यात्री सीगा, पर वो किसी दे लड़ लग्या सी साधु महापुरुष दे। वो एकदम उठिया मंजे तो तरब के, अमरदास ते गुरु नाल नहीं बनया हजे। भाई साहब क्यों उठ खड़े? कहंदा मैं तो एक मिनट नहीं खड़दा तेरे कोले, तू नगोरा हजे तक 65 साल की उम्र हो गई, 60 साल की, हजे तक गुरु वाला नहीं बनया। जुत्ती पाली पैरों च। अमरदास जी रोकते हैं, मिन्नतां करते हैं, भाई साहब तड़के वग जिओ। कहना मैं एक मिनट भी नहीं खड़दा, मैं तो अपनी यात्रा का जिहड़ा फल सी वही खराब कर लिया। ऐसी चोट लाती ब्रह्मचारी ने, सारी रात नींद नहीं आई। जब इच्छा पैदा हो गई नाम लैन की, गुरु वाले बनन की, तो तड़के नूं गुरु मिल भी गया। तुसीं इच्छा करो, गुरु तो घरों आके बांह फड़ के लै जाऊगा सोनू। को सतनाम सी। चरण शरण गुरु एक पैंडा, जाए चल सतगुरु कोट पैंडा, आ गए होए लेत है भावनी भगत होए, कौडी अगर भाग राखै सतगुरु साहे ताहे सर्ब निधान। दान देत है, दान हुंदा फ्री च, दान गुरु सानू दिंदा है। असीं कहने जी मैं दान कीता गुरुद्वारे 10,000, मैं दान कीता कणक, मैं दान कीता आटा। तुसीं नहीं दान कर सकते, आपां नहीं दान कर सकते, दान तो ये दिंदा है। कहो सतनाम सी। दानी तो यह है वड्डा, आपां तां मंगते हाँ।
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 10ਵੇਂ ਦਸਾਉਣ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਟਾ ਚੋਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਹੈ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਤੇ ਰਹੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਦ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਹੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਐਸੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਿਆ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹੱਸ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਨਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹੱਸਿਆ, ਸੱਚੈ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਕੂੜ ਨਾ ਜਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੱਚੈ ਦੇ ਦੀਵਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਇਕੱਠ ਆ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸੀ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠ। ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਕੂੜ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ ਫ੍ਰੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਹਮ ਦੋ ਰਾਦੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਨ ਨਾ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਊਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਗੋਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੂਗਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਧ ਆਪ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਖੋਲੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇਰੇ, ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ।
कहते नहीं नहीं मैं दर्शन देन नहीं आया, मैं तेरे कारण आया जिहड़ा अपने गुरु ते खड़ा है। कहो सतनाम। मैनू इहो जी मनुख चाहिए है जिहड़े अपने गुरु के चरणों नाल जुड़े होण। माफ़ी चाहना कि मैं जोर पाया, सच्चे दे दीवान कूड़ ना जाइए, झूठो झूठ बखान सो महल खुआई है। जिहड़े झूठ नाल जुड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ की गल करते हैं, झूठ का साथ देंदे है, उन्होंने निज स्वरूप की परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होंदी, वो खुआर होंदे आ। कहो सतनाम सी। वो सच तो निकल जाते आ। परमेश्वर कहता जाओ टेढ़ियां जूनां विच खेडो हुण। कहो सतनाम सी। जिवें किसी जवाब कहते जाओ खेडो, पर सिख का कहना मैं तेरे कोलों दूर नहीं जाना चाहता। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो, दुनिया मुक्ति भालदी है। गुरु कहना मुक्ति कुछ भी नहीं, मुक्ति तो तेनों मिल जूगी पर तू गलतियां करके फिर फस जाएगा। तू मेरी छत्र छाया हेठ ही रह। बिल्ली आउंदी है ना तो मुर्गी फिरदी है, चोगा चुगदी, 5-7 बच्चे फिरते हैं। जब खतरा पैदा होंदा खंभ चक लैंदी है तो बच्चे थल्ले लुक जाते हैं। कोई सतनाम। गुरु के खंभा हेठ ही रहीए तो चंगी गल है। इन्हां विकारां तो बिल्ले तो काल तो बचे रहांगे। राज न चाहो मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। आखिरी पंक्ति विच बाबा जी कहंदे सिखो ओ सिद्धो, क्या झूठ दे मंत्रां नूं प्राप्त करना, असीं सच नाल जुड़े होए हां। झूठो झूठ वखाण सो महल खुआई है। इत्थे रहिंदे भी दुखी रहिंदे आ ते इस शरीर नूं छड्ड के फिर खुआरी हुंदी है, थां थां भटकदे आ, टेढ़ियां जूनां विच पै जांदे है। धन है वो सिख सच्चे शब्द निशान, जिन्हां नूं गुरु ने सच दा पास देता। तुसीं पास जानदे हो ना, पढ़े होंगे स्कूलों च। ते क्लास विच एक लक्कड़ दी फट्टी जी रखी हुंदी सी, उहदा नाम सीगा पास। जे क्लास तो एक बच्चे ने बाहर जाना है बाथरूम वगैरह तो वह फट्टी जी चक के नाल ले जांदा, ये पास है। तो जिन्ना चਿਰ ਉਹ फट्टी वापस नहीं आती उन्ना चਿਰ दूजा बंदा नहीं जा सकता बाहर, बच्चा क्लास चो। इस तरह पास है निशान, गुरु ने सच का पास देता। हुण सानू कोई रोक नहीं सकता दरगाह च जाण तो। को सतनाम श्री। सच्चा शब्द निशान ते केड़ा पास दिता है? शब्द दा। वाहिगुरु गुरमंत्र है जप हम मैं खोई। सतगुर ने सानू सच का पास दिता है, शब्द का पास दिता है। धर्म राय दर कागद फाड़े, जान दिओ इनू बाबे नानक दा हो गया है। इहदा लेखा जोखा आपे करनगे, मैं नहीं करना। हुण को सतनाम श्री। धर्म राय दर कागद फाड़े जा नानक लेखा समझा। हिसाब किताब बराबर है मेरे वालों, तां जान दिओ। सच्चे शब्द इंसान ठाक ना पाई है, उन्होंने कोई रोक नहीं सकता। बल्कि धर्मराज तो हथ बन के खड़ जाऊगा। धर्म राय ऐसे चवै कि तो भवन पनीत, सच सुन बुझ वखाण महल बुलाई है। जिहड़ा इत्थे सच नाल जुड़ूगा, सच नूं सुनेगा, सच बोलेगा, उन्होंने तो सतगुर सद्दूगा। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। ते हुण रब मैनू भालदा फिरदा है, पाछे लागो हर फिरा कहे ते कबीर 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 तू मैनू मिलदा क्यों नहीं यार। कहो सतनाम सी। जिहड़े सच नाल जुड़ गए ना उन्होंने तो रब आप लैके जांदा है आपदे घरे, तां मेरा प्यारा हो गया। कहो सतनाम सी। 5 प्यारियां दे विसाखी दे दिहाड़े ते रचना की। जदों सारी खेड वरत गई, 10वें पातशाह ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ खड़े किया, तैयार प्रत्यार करके एको जे बाणे पा के सुनहरी। जिन्ने लोग डरदे परे जा बैठे सी, नेड़े आ गए, कहने जी साडे सिर भी कट लो। क्यों? सानू भी इन्हां वर्गे बना दिओ। कहते इन्हां वर्गे तो यही है। हुण कहो सतनाम सी। हुण तां तुहानूं पता लग गया ना भी गल कोई होर सी ते असीं कुछ होर समझ गए सी। कहो सतनाम सी। कहते नहीं जी सानू इन्हां वर्गे बना दिओ। कहते इन्हां वर्गे तो इहो ही आ, ये मेरे 5 प्यारे है, तुसीं सचियारे बनो, मेरी गल मनो। महाराज की गल मननी आ? अज तो बाद केस नहीं कटने, नशा नहीं वरतना, तमाखू नहीं पीनागा, तमाखू नूं हथ तक नहीं लाउणागा। जिन्नियां भी रेता रेता पाशन दसियां सारियां रिपीट कीतियां। कहते जी ठीक है, पर सानू इन्हां वर्गे कहते नहीं तुसीं सचियारे बनो, तुसीं इदों भी गाह लंघो।
किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल, तुहानूं इदों भी गांठ पाऊंगा, परमेश्वर विच मिलाऊंगा, सचियारे बनाऊंगा, तुसीं इन्हां दे कोलों अमृत छको। हुण कहो सतनाम। फिर 80,000 दे इकट्ठ ने अमृत छक के सचियारे बनना कीता। जिहड़ी सचियारे दी गल पहले जामे च कीती वो 1699 विच प्रैक्टिकल करके पूरी करती। कहो सतनाम श्री। समाप्ति करिए। सच सुन बुझ बखान महल बुलाई है। जिहड़े सच नाल जुड़दे है, सच नूं सुणदे है, सच नूं बुझदे समझदे है, फिर सच नूं अगे रिपीट करदे है, उन्हां नूं परमेश्वर अपने चरणों में रख लैंदा है। इसी पवित्र शब्द की विचार सिद्धा नाल होर भी गल हुई है। गुरु कृपा कीती कदे फिर सरवण करांगे। सलोक महला पहला। सिद्धा ने पुछया तुहाडे विच शक्ति किन्नी का। बाबे नानक अपना गुरु अंगद जी नूं पुछदे आ, बाबे नानक नूं पुछदे आ। सिद्धा नाल अचल बटाले ते भेंट हुई आ, तुहाडी शक्ति किन्नी का है। ते बाबा जी वो शब्द उचारदे ने, ध्यान दिओ। पहरा अगन हिवै कर बाधा, भोजन सार कराई, सगले दुख पानी कर पीवा, धरती हक चलाई। धरता राजी अंबर तोली, पिछे टंक चढ़ाई, एवड़ वधा मावा नाही, सबसे नथ चलाई। एता तान होवे मन अंदर, करी पे आह कराई। जे मैं चाहां तो इन्ना कुछ कर सकदा। को सतनाम सी। जे कहां तो मैं गर्मी दे विच जेठ हाड़ दे विच अग्नि दे कपड़े पा लवां। जे चाहां तो अग्नि दे कपड़े पा लवां, चाहां तो पहरा अग्न हिवै घर बाधा, चाहां तो मैं बर्फ का घर बना लिया। बर्फ तो खुर जाती है, बाबा कहते मैं बर्फ नूं घर बना लवां। जे चाहां भोजन सार कराई, मैं लोहे का भोजन कर लवां। लोहा खाना सौखा नहीं ना, पर सिद्धा नूं पातशाह कहते इन्नी ताकत है। पर इन्नी ताकत होंदिया भी मैं हंकार नहीं करदा गा, उहदे भाने विच रहना। खैर ये शब्द के विचार कदे फिर सरवण करांगे। याद रखियो गुरु कृपा करन। बोलदियां ने एक अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण जोग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।